Okay, so today we will do Act 4, Scene 1. So first of all, understand the scene here. This scene here, you can see here that in this scene everyone is in judgment place. You can see here, and here we will they will discuss about Antonio and Shylock matter by Duke. He is Duke. Duke is the person kind of judge of the Venice, you can say. And this chapter, this act is very very important of the point of the examination view. Why? Because here at this place almost all character are here. Okay, so their dialogues are very very important. Okay, so let's start from here. Duke, what is Antonio here? What means well? So he is asking, Antonio आ गया है, is Antonio here? So Antonio confirms, he reply, ready. So please your grace. So now he confirms that yes, I am here. You can proceed further. Now Duke replies, I am sorry for this. So Duke is feeling so sad about Antonio. Why he is feeling so sad? Because he know very well Antonio that he is very kind-hearted person and he is very good citizen of the Venice. Okay, and he is here in this situation. That's why he is feeling sorry for Antonio. Though art come to answer a stony adversary, an inhuman wretch, incapable of pity, void and empty from any dram of mercy. Okay, so a stony adversary. So now he is saying to Antonio that your opponent is very tough like stone. स्टोनी एडवर्सरी यू कैन सी हियर, पत्थर दिल इंसान. जो तुम्हारा अपोनेंट है वो बहुत ही पत्थर दिल इंसान है. इन ह्यूमन रिच मीन्स ही हैज नो फीलिंग्स, अनकेपेबल ऑफ पिटी, उसके दिल में कोई दया नहीं है. वाइड एंड एम्प्टी फ्रॉम एनी ड्रैम. ड्रैम मीन्स वेरी लो क्वांटिटी ऑफ मर्सी. सो ही हैज नो फीलिंग्स एट ऑल. Okay, so that's why he is feeling very sad for Antonio. Okay, so now Antonio say, I have heard your grace hath taken great pains to qualify his rigorous course. Okay, so now Antonio is saying to Duke, I have heard that you have tried your hardest to change his rigid mind. Okay, whose mind? Shylock mind. Okay, so but since he stands obdurate and that no lawful means can carry me out of his envious reach. So now he is saying that yes, you have tried, so thanks for that, but since he remains stubborn and there is nothing I can do legally to escape him, I do oppose my patience to his fury, and I am armed to suffer with the quietness of spirit the very tyranny and rage of his. Okay, so now he is saying कि मैं जानता हूँ वो बहुत ही जिद्दी और वो अपने गुस्से में आकर ऐसा डिसीजन लिया है और मैं इससे बाहर नहीं निकल सकता हूँ किसी भी तरीके से, लॉफुल तरीके से. दैट्स वाई अब मैंने अपने माइंड को बहुत ही शांत कर लिया है, बहुत ही काम कर लिया हूँ और एंड एक्सेप्ट कर लिया हूँ कि अब मेरे साथ ऐसा होना ही है. ओके, सो नाउ ड्यूक से गो one and call the Duke into the court. So now you can see here that this Duke, okay, he is not calling the name of the Shylock. He is saying Jew. Why? Because he is also Christian, right? And he also hates Jew. Okay. Now Salario, he is ready at the door. He comes, my lord. Now he is saying that yes, he is already at the door. He is ready to come, my lord, here. Now Shylock entered. Okay, now so Shylock entered. So Duke is telling to everyone here that make room and let him stand before our face. So make room so that he can stand right in front of me. Now Duke is saying to Shylock directly, Shylock, the world thinks, and I think so too, that thou but lest this fashion of thy malice to last hour of act. So he is saying, Duke is saying to Shylock that Shylock, everyone thinks, and I agree, that you are just putting on show of such malice until the very last minute. Malice means
इंटेंशन टू हर्ट समवन, ओके। तुम जो ये कर रहे हो, तुम बस ये एक एक्ट कर रहे हो, दिखावा कर रहे हो, ओके, और ये तुम लास्ट आवर तक करोगे। एंड देन tis thought dolt show thy mercy and remorse more strange than is thy strange apparent cruelty, and then you will at last show some mercy and remorse, something maybe even more shocking to see from you than your cruelty. And where thou now exit the penalty, which is a pound of this poor merchant's flesh, thou wilt not only lose the forfeiture, but touched with human gentleness and love, forgive a moiety of the principle. So now he is saying that it is widely thought that everyone thinks that you will not only forget about the penalty, a pound of this poor merchant's flesh, but you will also even let some of money go, touched by human gentleness and love. So here you can see that Duke is trying to convince Shylock indirectly, okay. Again, so glancing an eye of pity on his losses that have of late so huddled on his back annals to press a royal merchant down, and plug commiseration of his state from brassy bosom and rough hearts of flint, from stubborn Turks and Tartars never trained to offices of tender courtesy. We all expect a gentle answer, Joe. Okay, so now he is saying that out of pity for the losses that recently have come to weigh upon Antonio, okay, that he lost his ships and all, which were enough to ruin a royal merchant, enough to make even a stone-hearted feel bad for him, enough to make even the stubborn Turks and Tartars. You know, Turks and Tartars, they are not the people who have been known to be sympathetic and being kind for any other human being, you can say here. Okay, so that's why he is saying here कि मतलब इतना जो लॉस हुआ है एंटोनियो का, इतना सारा कुछ लॉस हो गया है कि एक रॉयल मर्चेंट जो है मतलब बर्बाद हो जाएगा, ओके। और ये जो सिचुएशन है एंटोनियो के साथ, ये देखकर किसी भी जो स्टोन हार्टेड पर्सन होगा उसे भी दया आ जाएगी एंटोनियो पे। एंड ही इज गिविंग द एग्जांपल ऑफ टर्क्स एंड टार्टर्स, जो बिल्कुल भी जिससे दया नहीं रहता है दूसरों के लिए, उसे भी दया आ जाएगी। एंड वी ऑल एक्सपेक्ट अ जेंटल आंसर जो, एंड वी ऑल एक्सपेक्ट अ जेंटल रिप्लाई टू दिस फ्रॉम यू जो। Okay, so now Shylock reply, I have possessed your grace of what I purpose. मुझे जो चाहिए मैंने वो क्लियर कर दिया है, बता दिया है. सो डोंट ट्राई टू कन्विंस मी. एंड बाय आवर होली सैबथ आई हैव आई sworn to have the due and forfeit of my bond. So Sabbath means what? Holy Sabbath. Sabbath means the seventh day of Jews. Okay, that is Saturday. जिस तरह कोई स्पेशल पर्टिकुलर डे किसी रिलीजियस पर्पज से स्पेशल होता है, जैसे आप क्रिश्चियन का देखोगे संडे होते हैं, उसी तरह इनके जो ज्यूस के होते हैं वो सैटरडे होते हैं. तो होली सैबथ की मैंने कसम खाई है कि मैं जो भी मेरा जो ड्यू फॉरफिट है वो मैं अपना बॉन्ड लेकर के रहूँगा एंटोनियो से. इफ़ यू डिनाई इट लेट द डेंजर लाइट अपॉन योर चार्टर एंड योर सिटीज फ्रीडम. अगर आपने इसे मना किया, आपने इसे अगर डिनाई करते हो, टू होम ही शैलोक इज सेइंग टू ड्यूक, अगर आप इसे मना करते हो, डिनाई करते हो, तो ये नुकसान मेरा नहीं होगा, ये आपका नुकसान होगा, आपके लॉ का नुकसान होगा, सिटीज़ के फ्रीडम का नुकसान होगा. यू विल आस्क मी वाई आई रेदर चूज टू हैव अ वेट ऑफ कैरन फ्लैश दैन टू रिसीव द 3000 डकेट्स. नाउ यू विल आस्क कि मैं 3000 डकेट के बदले 1 पाउंड ऑफ फ्लैश, जो इंसान का फ्लैश होता है, वो मैं क्यों ले रहा हूँ. आई विल नॉट आंसर दैट बट से इट इज़ माई ह्यूमर. इज इट आंसर्ड? नाउ ही इज सेइंग कि अब जब आप ये क्वेश्चन मुझसे पूछोगे कि मैं एक मतलब फ्लैश ह्यूमन का क्यों ले रहा हूँ इसके बदले में, ऑफ कोर्स उसका कुछ यूज़ नहीं होना है और 3000 डकेट्स का मेरा ही नुकसान होगा. तो इस क्वेश्चन का रिप्लाई मैं यही करूँगा कि मैं इसका आंसर नहीं दूंगा, और यही मेरा रिप्लाई है. तो क्या आपको आंसर मिल गया? इज इट आंसर्ड?
What if my house be troubled with a rat and I be pleased to give 10,000 ducats to have it banned? What are you answered yet? So now he is saying कि क्या अगर मेरे घर में बहुत सारे चूहे हो जाए और उसे हटाने के लिए, साफ कराने के लिए मैं 10,000 डकेट्स स्पेंड करूं, तो क्या आप क्या बोलोगे इस पर? आप क्या रिप्लाई करोगे? ऑफ कोर्स इट्स माई मनी, मैं जहाँ चाहूँ उस वहाँ पर स्पेंड करूँ, जो करूँ उस मनी के साथ. सम मैन आर लव नॉट अ गैपिंग पिग. कुछ लोग होते हैं जो पिग को पसंद नहीं करते. सम दैट आर मैड इफ दे बिहोल्ड अ कैट. कुछ लोग होते हैं जो कैट को पसंद नहीं करते. एंड अदर्स व्हेन द bagpipe sings either nose cannot contain themselves for affection, mistress of passion sways it to the mood of what it likes or loathes. कुछ लोग होते हैं जो हाई साउंड म्यूजिक पसंद नहीं करते. तो आप क्या बोलोगे? सबकी अलग अलग चॉइस होती है, अलग अलग मूड होता है, राइट? सो नाउ फॉर योर आंसर. अब मतलब क्या आपको इसका आंसर मिल गया कि लोगों की अपनी अपनी पसंद होती है, अपनी अपनी चॉइस होती है, वो उसके अकॉर्डिंग करते हैं, उनका जो चाहे मन करे. तो मतलब ये ऐसा कहना चाह रहा है कि ये मेरा मनी है, जो 3,000 डकेट है इसमें मेरा नुकसान हो रहा है, मेरा मनी है, मैं जो चाहूँ वो करूँ. As there is no firm reason to be rendered why he cannot abide a gaping pig, why he a harmless necessary cat, why he a woolen bagpipe but of force. Okay, so now he is saying कि इसका कोई आंसर नहीं है कि लोग क्यों पिग से डरते हैं, उसको पसंद क्यों नहीं करते, कैट को क्यों नहीं पसंद करते हैं, या फिर हाई म्यूजिक साउंड को क्यों नहीं पसंद करते हैं. सबकी अपनी चॉइस है. मस्ट yield टू सच इनवाइटेबल shame as to offend himself being offended. तो समटाइम्स जब आपको कुछ पसंद नहीं आता है, ठीक है, तो इसके लिए इनवेटेबल शेम, कुछ ऐसी काम करने पड़ते हैं उसे रोकने के लिए, ऑफेंड करने के लिए, जो लोगों को पसंद नहीं आते हैं. सो कैन आई गिव नो रीज़न नॉर आई विल नॉट. तो मैं ये क्यों कर रहा हूँ, इसके लिए मैं एक वजह नहीं दूंगा, कोई वजह नहीं दूंगा. मोर देन अ लॉजेड हेड एंड सर्टेन लॉदिंग आई बेयर एंटोनियो. मैं एंटोनियो से बहुत नफरत करता हूँ. दैट आई फॉलो दस अ लॉजिंग स्वीट अगेंस्ट हिम. आर यू आंसर्ड? नाउ ही इज सेइंग मैं एंटोनियो से इतना नफरत करता हूँ, दैट्स वाई मेरा नुकसान हो रहा है यहाँ पर 3,000 डकेट्स का, फिर भी मैं ऐसा उसके अगेंस्ट एक्शन ले रहा हूँ. क्या आपको अब आंसर मिल गया? डिड यू गेट द आंसर? टू whom he Shylock is saying? To Duke. Now Bassanio is replying to Shylock. This is no answer, the unfeeling man, to excuse the current of thy cruelty. So now Bassanio is saying, I am not satisfied with your answer. ये कोई सही आंसर नहीं है, satisfactory आंसर नहीं है. Thou unfeeling man, तुम जिसके पास कोई फीलिंग नहीं है. To excuse the current of thy cruelty, अपने इस जो क्रुएल्टी तुम कर रहे हो, इसे छुपाने के लिए जो तुम एक्सक्यूजेस दे रहे हो, ये आंसर तुम्हारा सेटिस्फैक्टरी नहीं है. Shylock, I am not bound to please thee with my answer. I am not here to please you with my answer. Bassanio, do all men kill the things they do not love? Bassanio is asking to Shylock, क्या हर उस इंसान को मार देना चाहिए जिससे तुम लव नहीं करते? Shylock, hates any man the thing he would not kill. क्या जो मतलब जिस इंसान से आप नफरत करते हो, जिस चीज़ से आप बहुत नफरत करते हो, क्या उसे मारने की कोशिश नहीं करोगे? Bassanio, every offense is not a hate at first. So now he is saying here कि जो भी चीज़ें, जो भी लाइक रॉन्ग डूइंग जो होता है, वो हेट नहीं होता है. कह सकते हैं कि आज जो जिस चीज़ को आप पसंद नहीं करते हो, दैट डजेंट मीन कि आप उससे हेट करते हो. एंड Shylock, व्हाट वुड्स दो हैव अ सर्पेंट स्टिंग दी ट्वाइस. तो क्या अगर कोई स्नेक, सर्पेंट मीन्स कोई स्नेक या सांप, आपको फर्स्ट टाइम काटते हैं, तो क्या आप उसके काटने का दोबारा इंतजार करते हो और तभी आप कोई एक्शन लोगे? Why Shylock is giving such example? Just because he hates Antonio. Antonio ने उसके साथ ऐसा एक बार किया था जिस कारण से Shylock उससे बहुत नफरत करता है, और वो ऐसा इसलिए कह रहा है कि वो दोबारा, क्या मैं इंतज़ार करूँगा कि दोबारा जो Shylock है मुझे हर्ट करे और तब मैं कोई एक्शन लूँगा? नहीं, सांप आपको दोबारा काटे इससे पहले सांप को ये मार दो, अकॉर्डिंग टू Shylock.
Now Antonio say to Bassanio, I pray you, think you question with the zoo. Now because he is very upset or he is feeling not good of course, क्योंकि उसे मालूम है उसके साथ क्या होने वाला है, तो वो बसानियों से कहते हैं कि इससे कुछ मत बोलो, कुछ मत करो. You may as well go stand upon the beach and bid the main flood bet his usual height. तुम किसी बीच पर जा करके, bid means ask, main flood means ocean, किसी ओशन के से बोल सकते हो कि वो जो उसकी जो टाइड होती है, हाई टाइड, ठीक है, जो यूजुअल हाइट होती है, तो वो उससे कम करे, अपनी टाइड की हाइट को कम करे. वो शायद सुन ले. यू मे एज वेल यूज क्वेश्चन विद द वोल्फ वाई ही हैथ मेड द यू ब्लीड फॉर द लैम्ब. तुम यू से, जब मतलब कि लैम्ब मीन्स भेड़ का बच्चा, एंड यू मीन्स फीमेल भेड़ कह सकती है, उसकी मम्मा, लैम्ब की मम्मा. तो जब वुल्फ इसके बच्चे को खा लेता है, लैम्ब को, और उसकी जो मम्मा जो मतलब रो रही है अपने बच्चे के लिए जो भी, तो वुल्फ से जब तुम बोलोगे ऐसा कि तुमने क्यों उसके बच्चे को खाया, तो शायद उसे भी दया आ जाए कि हाँ उसकी मम्मा जो है वो रो रही है. You may as well forbid the mountain pines to wag their high tops and to make no noise when they are fritten with the gust of heaven. जब mountain, you may ask, मतलब आप उसे भी बोल सकते हो, mountain pines, जो wag means वेव करना, ठीक है. तो ये जो ट्रीज होती है, जो पाइन ट्रीज होती है, जो माउंटेन की हाइट की होती है, और ये वेविंग कर रही है विंड के ब्लो होने से, और जो एक वो नॉइज प्रोड्यूस करती है, ठीक है. तो अगर आप उसे बोलोगे, उसे मना करोगे ऐसा मत करो, तो शायद वो भी रुक जाए. यू मे एज वेल डू एनीथिंग मोस्ट हार्ड एज सिक टू सॉफ्टन दैट. कोई भी चीज़ दुनिया में, जितने भी इम्पॉसिबल वर्क है आप वो कर सकते हो, जितना भी हार्डेस्ट थिंग है आप उसे सॉफ्ट कर सकते हो. देन विच वॉट्स हार्डर, हिज जोइस हार्ड. Therefore I do beseech you make no more offers. बट ये जो जोइस का जो हार्ट है, तुम उसे सॉफ्ट नहीं कर सकते हो. वो एकदम रिजिड हो गया है, उसका जो हार्ट है वो एकदम पत्थर दिल हो गया है. अब उसे कितना भी ऑफर दे दो, उसे कितना भी कोशिश करो कन्विंस करने का, वो नहीं मानने वाला है. Use no farther means, but with all brief and plain conveniency, let me have judgment and the zoo his will. So now at last he is saying कि अब कोई फ़ायदा नहीं है इसे कन्विंस करने का, इसने डिसाइड कर चुका है, इसीलिए बेटर है ये जो जजमेंट है इसे पास होने दो, और इसे जो करना है मेरे साथ उसे कर लेने दो. तो एंटोनियो अब एक्सेप्ट कर चुका है कि हाँ जोइस जो है अब उसका पाउंड ऑफ फ्लेश ले करके रहेगा. सो यहाँ पर वो 3 एग्जाम्पल्स दे रहे हैं. फर्स्ट एग्जाम्पल क्या, आप ओशन के हाइट को, जो टाइड की हाइट है उसे आप बोलोगे कम करने, वो कम कर देगा. वुल्फ को आप रिग्रेट फील कराओगे, उसे भी रिग्रेट फील होगा. जो दिस इज़ नॉट पाइन ट्री बट दिस इज़ जस्ट एग्जाम्पल कि जब पाइन ट्री जो बहुत ही हाइटेड होती है, ठीक है, वो जिस तरह विंड से ब्लो मतलब वेव करती है और साउंड नॉइज प्रोड्यूस करती है, आप उससे मना करोगे वो भी मना हो जाएगा. बट जो इसका जो हार्ट है वो नहीं बदलने वाला है, वो नहीं पिघलने वाला है. मतलब नाउ बसानियो सेज फॉर डाई 3000 डकेट्स हियर इज 6. तुमने 3000 डकेट्स के लिए, मतलब जो बातें हुई थी वो 3000 डकेट्स के लिए हुई थी, लो मैं तुम्हें 6000 डकेट्स देता हूँ इसके बदले, बट मेरे फ्रेंड्स को छोड़ दो. नाउ शाइलॉक सेज if every ducat in 6000 ducats were in 6 parts and every part a ducat, I would not draw them, I would have my bond. So now he is saying कि ये जो तुम्हारी 6000 है ducats, इसे तुम every part मतलब कि 1000 ducats का तुम बना दो, ठीक है, और उसके बाद उसे 6 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, तो टोटल 36,000 डकेट्स हो जाएंगे. अगर तुम मुझे इतना भी दोगे तो भी मैं नहीं लेने वाला हूँ, मुझे बस मेरा बॉन्ड चाहिए. नाउ ड्यूक सेज हाउ शैल्ट द होप फॉर मर्सी रेंडरिंग नन. तुम अगर मतलब किसी के लिए दया नहीं रखोगे, तो जब तुम्हें दया की जरूरत होगी तो कोई कैसे तुम पर दया कर सकते हैं. डायलॉग इज रिप्लाइंग टू ड्यूक, व्हाट जजमेंट शैल आई ड्रेड
doing no wrong. Why should I worry about mercy when I have done nothing wrong? You have among you many a purchased slave, which like your asses and your dogs and mules you use in abject and in slavish parts because you bought them. तुम में से बहुत सारे लोगों ने स्लैव परचेज करके रखा है और तुम उनसे इस तरह काम कराते हो जिस तरह एसेस डॉग्स एंड म्यूल से काम कराते हैं और तुम जो हो उससे मतलब बहुत ही बुरा ट्रीट करते हो उन स्लैव्स के साथ. तो वाई? बिकॉज तुमने उन्हें खरीदा है. यू बॉट दैम. Shall I say to you, let them be free, marry them to your heirs? Why sweat they under burdens? Let their beds be made as soft as yours, and let their palates be seasoned with such wines. So now he is saying, should I tell you to free them and marry them to your heirs? Why do you make them sweat doing work like asses and dogs? Why not let their bed as soft as yours? जिस तरह तुम्हारे जो बेड वगैरह सॉफ्ट होते हैं उनके क्यों नहीं होते हैं? जिस तरह तुम जितना फाइन डिनर और फूड वगैरह खाते हो तो उन्हें क्यों नहीं उतना ही अच्छा खिलाते हो? You will answer, the slaves are ours. So do I answer you? अगर मैं तुमसे ये सारी चीज़ें पूछूंगा तो तुम मुझे आंसर दोगे कि वो जो स्लैब्स है वो तुम्हारे हैं, तुमने उसे खरीदा है. तो अगर ये ऐसा है तो फिर मैं भी यही आंसर करूँगा. द पाउंड ऑफ फ्लैश विच आई डिमांड ऑफ हिम इज़ डियरली बॉट. जो मैं डिमांड कर रहा हूँ पाउंड ऑफ फ्लैश का वो मैंने खरीदा है. इट इज़ माइन एंड आई विल हैव इट. ये मेरा है और मैं इसे ले कर रहूँगा. इफ़ यू डिनाई मी फाई अपॉन योर लॉ. अगर तुम मुझे मना करते हो तो तुम्हारे लॉ पे फाई है. मतलब कह सकते हो एक ऐसा वर्ड है. कैसा वर्ड है कहते हैं ना फाई मतलब छी है तुम्हारे लॉ पर. देयर इज नो फोर्स इन द डिक्रीज ऑफ वेनिस. तो यहाँ पर कोई वैल्यू नहीं रह जाएगा क्योंकि जो वेनिस की जगह है वहाँ पर बहुत सारे बाहर से लोग आते हैं बिजनेस करने. बिजनेस मार्केट है जिस तरह इंडिया में मुंबई है ना तो वैसा ही वेनिस है. ठीक है. तो अगर यहाँ पर लॉ को नहीं माना जाएगा तो और भी सारे लोग इस चीज़ को फॉलो नहीं करेंगे, नहीं मानेंगे. सो दैट्स व्हाई ही इज सेइंग लाइक दैट. डिक्रीज ऑफ वेनिस. I stand for judgment. Answer. Shall I have it? मैं यहाँ पर जजमेंट के लिए हूँ तो मुझे आंसर करो. रिस्पॉन्स माई क्वेश्चन. ठीक है. क्या मुझे इंसाफ मिलेगा? सो नाउ ड्यूक से अपॉन माई पावर आई मे डिसमिस दिस कोर्ट. मुझ में पावर है कि मैं अभी के अभी ये कोर्ट डिसमिस कर सकता हूँ. अनलेस बेलेरियो a learned doctor whom I have sent for to determine this come here today. तो बेलेरियो कौन है? यहाँ पर आपके एक MCQ बन सकते हैं. बेलेरियो कौन है? अ लर्न्ड डॉक्टर, डॉक्टर ऑफ लॉ. ठीक है. यहाँ पर आप कह सकते हो लॉयर को कहा जा रहा है. ठीक है. क्या? लर्न्ड डॉक्टर. और कौन है ये? बेलेरियो. तो ड्यूक इज सेइंग टू शैरलॉक कि मैं चाहे तो यहाँ पर ये कोर्ट डिसमिस कर सकता हूँ लेकिन मैंने बेलेरियो को भेजा है कि वो इस केस के बारे में डिसाइड करे और जो आज यहाँ आ जाएगा. कम हियर टुडे. नाउ सेलेरियो. माई लॉर्ड हियर स्टेज विदाउट अ मैसेंजर विद लेटर्स फ्रॉम द डॉक्टर न्यू कम फ्रॉम पेडुआ. तो यहाँ पर है कुछ एक मैसेंजर आया हुआ है उस डॉक्टर के लेटर्स को लेकर. नाउ ड्यूक रिप्लाइज ब्रिंग अस द लेटर कॉल द मैसेंजर. जो मैसेंजर आया है उससे बुलाओ और जो लेटर्स है वो भी तो लाओ. Now Bassanio saying to Antonio, good cheer Antonio. वो थोड़ा से मोटिवेट कर रहा है कि तुम इतना भी सैड फील मत करो. ठीक है. हमारे पास है अभी चांस हो सकते हैं तुम बच सकते हो. What man courage yet the zoo shall have my flesh blood bones and all or thou shalt lose for me one drop of blood. तो ये कह रहा है अपने दोस्त से कि जो जू है ओके जो शायलोक है
वो तुम्हारे एक ड्रॉप ब्लड लेने से भी पहले उसे मेरे फ्लैश, मेरा ब्लड और मेरा बोन्स लेना पड़ेगा। मतलब कहते हैं ना कि तुम्हें कोई नुकसान पहुंचे उससे पहले उसे मेरी लाश से गुजरना पड़ेगा। कुछ वैसा ही डायलॉग यहाँ पर जो है बरसानियो अपने दोस्त एंटोनियो को मोटिवेट कर रहा है, ऐसा डायलॉग बोल करके।